Hello everyone, welcome to my channel Dada's Physics. So in my last video on statistical mechanics, I had already discussed the basic principles, or you can say the basic concept of statistical mechanics. That's why video was a little bit large. So I think you all covered that video with your strong patience, and in this video I will very quickly discuss a little bit of summary of last video and the main topics of statistical mechanics. So in last video I had already discussed about the concept of macro states, micro states. As you know that that statistical mechanics has two important parts, that is classical statistics and quantum statistics, and the quantum statistics has two different category. First one is Bose-Einstein, second one is Fermi-Dirac statistics. And you know the definition of Bose-Einsteins or bosons, and definition of Fermi-Dirac, that is fermions. So bosons are the particles which have integral spin angular momentum, and fermions are the particles which have fractional spin angular momentum. Okay, fraction. And next we will discuss about the concept of phase space, that is a space of 6 n-dimensional, 3 position coordinate and 3 momentum coordinate, and the smallest volume of the phase space is h cube. How? That is from uncertainty principle we can conclude that delta x, delta px, product of delta x and delta px is h, and we get delta y, delta py also h, and delta z, delta pz is h. So if we product all of them, then we will get h cube. Okay, and then we make a small numerical which gives us the definite concept of macro states and micro states. So basically macro states is a state which is in bulk in nature. That is, if you consider two floor of a building, and you say that there is 3 people in ground floor and 2 people in first floor, then this is macro state. And if you say 2 girls in first floor and 3 boys in ground floor, then this is the macro state. And it can be changed in different way. It is possible to have 1 girls and 1 boys in first floor, and 1 girl and 2 boys in second floor, ground floor, or many different way you can imagine, and these ways are called microstate. And if a macro state has maximum number of microstate, then this state is the equilibrium state, because the state which is not changing with time remains constant. This state is equilibrium state. And this number of ways, the total number of ways in which macro state can be formed, this number of ways is called thermodynamical probability, and this thermodynamical probability is directly proportional with the entropy. Okay, and we get this relation S is equal to KBL and omega. And then we get 3 type of statistics: MB, Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein, and Fermi-Dirac. So this is the quick summary of my last video. If you did not complete this video, then please complete it and then come to this second part. And so let's start today with very important concept of Maxwell-Boltzmann statistics. Let's start. Okay, so चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो. So what is Maxwell-Boltzmann statistics? So in actually Maxwell-Boltzmann statistics is a classical statistics. At first you need to know that this is classical statistics. So this is classical statistics. So this classical statistics, the particles corresponding to this statistic has this properties, that is, particles are identical and distinguishable. So particles are identical but distinguishable. Okay,
and second is they do not possess any kind of spin. Third one is they do not obey Pauli exclusion principle. I think you know that Pauli exclusion principle क्या है. हम फिर भी जब फार्मी ड्रग स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे तब हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डिस्कस कर देंगे. ओके, बट लेट्स डिस्कस द postulates of this Maxwell-Boltzmann statistics. So particles are identical. मतलब क्या है? मतलब है मान के चलो कि A एक एप्पल है और B भी एक एप्पल है. ओके, सो दोनों इन सेंस में आइडेंटिकल है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर एप्पल. ओके, बट ये जो एप्पल है ये कंप्लीट रेड है और ये जो एप्पल है वो थोड़ा सा उसमें ग्रीनिश फ्लेवर है. ओके, so in this way they are distinguishable. So particles are identical, but there is some property in the way it can be distinguishable. Okay, so in the this kind of particles are classical particles, and this is known as bosons. Okay, these particles are known as bosons, and the example is ideal gas molecule. Ideal gas molecules are identical in nature, but different molecules have different molecules can have different type of velocity vector. They can move in different directions. Okay, random direction. So these are classical particles, and the most important thing is that the distance between two molecules cannot be smaller than the de Broglie wavelength. Okay, if they are smaller, then we can consider the quantum statistics for this case. Okay, so it is a matter of discussion that what if we consider that the ideal gas molecules are bosons, and what if we consider they are any different kind of particles. So it is depends on our postulates. It depends on our postulates, the type of ideal gas molecules, but more or less you can say that ideal gas molecules are classical particles, and they follows Maxwell-Boltzmann statistics. Okay, but they do not have any spin. इसका स्पिन नहीं है, एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये फॉलो नहीं करेगा. तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ. तुम लोगों ने एटॉमिक में तो ये पढ़ चुके हो ऑलरेडी कि अगर हम दो एटॉमिक स्टेट्स अगर कंसिडर कर ले, एंड अगर इलेक्ट्रॉन अगर इसमें फील कर दे, तो ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, बट ये जो अप मैंने रिप्रेजेंट किया, अप का मतलब है ये अप स्पिन, मतलब इसका जो स्पिन है वो प्लस हाफ है, एंड अगर हम डाउन बोलेंगे तब हम उसको बोलेंगे वो है नेगेटिव माइनस हाफ स्पिन. ओके, ये हाफ स्पिन का मतलब क्या है? मतलब है इसका जो स्पिन है वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, वो सिंपली a fraction है, and as they have spin angular momentum in fraction, that's why they are fermions. Okay, and the Pauli exclusion principle is that दोनों सेम स्पिन का पार्टिकल एक ही स्टेट में नहीं रह सकता. यही है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ओके, तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये लोग फॉलो नहीं करते बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ स्पिन. ओके, सो चलो अब हम डिस्कस करेंगे ये मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स जो है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये हम डिस्कस करेंगे. तो ये मान के चलते हैं कि हमें कुछ एनर्जी स्टेट्स है. ओके, कुछ एनर्जी स्टेट्स है E1, E2, E3 ऐसे करके कुछ एनर्जी स्टेट्स है, एंड ये जो एनर्जी स्टेट्स है, इन एनर्जी स्टेट्स में क्या है, इन लोगों का डिजेनरेसी है, मतलब डिजेनरेसी N1, N2, N3 करके डिजेनरेसी है. अब ये डिजेनरेसी क्या है? डिजेनरेसी है मतलब ये मान के चलो ये है हमारा E1 एक एनर्जी लेवल, तो इसका 3 कंपार्टमेंट है, इन तीनों का ही एनर्जी E1 है. ओके, बट ये तीनों कंपार्टमेंट है, तो इसका जो डिजेनरेसी बन गया, ये डिजेनरेसी बन गया 3. ओके, so in this way E1 has degeneracy N1, E2 has degeneracy N2, and E3 has N3, and so on. Okay, so now there is
each level be associated with the sub levels G1, G2, G3. Okay, so ऐसे करके ये सब लेवल्स है, G1, G2, G3 ऐसे करके, and the number of sub levels corresponding to the energies E1, E2, E3. Okay, now अगर हम ये कंसिडर कर ले कि इसमें मतलब एक आयत एनर्जी लेवल को मान लेते हैं EI, उसका जो डीजेनरेसी है उसका डीजेनरेसी हो गया GI. ओके, उसका डीजेनरेसी है GI, एंड उसमें हम अगर ये कंसिडर कर ले कि अगर इसका जो डीजेनरेसी है वो है GI, तब हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी कंपार्टमेंट को चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी बन जाएगा 1/GI, because if there is 3 compartment then probability to choose one compartment is 1/3, and if there is GI number of compartment then probability of to choose one compartment is 1/GI. Okay, now if we consider there is Ni number of particles are distributed in this compartments, then you can say the average number of particles for the corresponding states, average number of particles कितना बन जाएगा, Ni divided by GI, ये बन जाएगा average number of particles in state. ओके, ये बन जाएगा. तो Ni by Gi ये क्या बन गया, ये Ni by Gi को हम कहेंगे ऑक्यूपेशन नंबर, इसको हम कहेंगे ऑक्यूपेशन नंबर. तो ऑक्यूपेशन नंबर समझ में आ गया. ऑक्यूपेशन नंबर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिजनरेट स्टेट्स इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन नंबर. ओके, तो Ni by Gi ये बन गया. अब ये मान के चलो कि हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स का बात कर रहे हैं, एंड देयर इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कैपिटल N, and this number of particles, this n number of particles can be distributed in this way that in this compartment there is n1 number of particles, there is n2 number of particles, there is n3 number of particles. In this way they are distributed. Then total number of way in which they can distribute, okay, is n factorial divided by n1 factorial into n2 factorial and so on, ऐसे करके जाएगा. तो ऐसे इसको हम कहेंगे n factorial divided by ये जो हम कैपिटल इसको हम सिग्मा कहेंगे, एंड Ni फैक्टोरियल कहेंगे. Ni फैक्टोरियल का मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट होगा n1 फैक्टोरियल इंटू L2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल. समेशन का मतलब तो तुम लोगों को पता है कि सिंपल सम हो जाएगा सबका, यानी यहाँ पे इसका जो मतलब है, इसका मतलब है प्रोडक्ट बन जाएगा. ओके, तो इससे हमारा टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का वे मिल गया. ओके, एंड इच in every way there is Ni by Gi, ये रहा हमारा average number of particles in per states which is called occupation number. So अब क्या होगा, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ये जो हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी. तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी हमें इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी को, मतलब थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी को W से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अब देखो यहाँ पे वे तो बन गया, ये रहा हमारा वे. अब हर एक वे के लिए हमें क्या मिलेगा, हर एक वे के लिए हमारा एक GI मिल जाएगा. ओके, ऐसे करके Ni नंबर ऑफ वेज तो है, हर एक वे के लिए GI तो सेम ही है ना. Ni नंबर मतलब Ni नंबर ऑफ वेज को, Ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे GI नंबर में. तो हर एक पार्टिकल का ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगा कि पहले पार्टिकल को लो वो भी 3 ही कंपार्टमेंट में जाएगा. अगर हम इन 3 को मानेंगे तो 3 कंपार्टमेंट में जाने का प्रोबेबिलिटी वो सेम है. दूसरा पार्टिकल को लो, उसका भी ये 3 कंपार्टमेंट का जाने का प्रोबेबिलिटी सेम है, मतलब 1/3 है. तीसरा का भी 1/3 है, चौथा का भी 1/3. देन टोटल प्रोबेबिलिटी तो प्रोडक्ट हो जाता है, मतलब 1/3 होल टू द 4 बन जाएगा 4 पार्टिकल के लिए. अगर Ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तब हमें क्या मिलेगा, तो हमें Gi होल टू द पावर Ni मिल जाएगा, एंड यहाँ पे हम उसका भी प्रोडक्ट को ले लेंगे, एंड इन दोनों को मिला के हम ऐसे लिखेंगे कि n फैक्टोरियल ये प्रोडक्ट का हमें मिल जाएगा Gi होल टू द पावर Ni डिवाइडेड बाय Ni फैक्टोरियल, इसको हम लिखेंगे. इससे हमें W मिल गया. अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए हमारा इसका हम नेचुरल लॉग ले लेंगे. नेचुरल लॉग लेने से हमें ln W
कैलकुलेट करेंगे। तो ln w कैलकुलेट करने से हमें ये मिल जाएगा, सिंपल लॉग यूज करेंगे, log a माइनस log b ln n फैक्टोरियल प्लस समेशन ओवर, ये प्रोडक्ट जो है वो समेशन बन जाएगा ln लेने से, बिकॉज log ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, मतलब प्रोडक्ट रहेगा तो वो सम बन जाएगा। तो ni ln gi माइनस समेशन ओवर ln ni फैक्टोरियल, ये बन जाएगा। तो यहां पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो है स्टर्लिंग फॉर्मूला। ओके, वो है स्टर्लिंग फॉर्मूला। तो ये स्टर्लिंग फॉर्मूला क्या है? स्टर्लिंग फॉर्मूला है ln n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n ln n माइनस n, ये रहा हमारा स्टर्लिंग फॉर्मूला। तो स्टर्लिंग फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे। ओके, यहां पे यूज करने से हमें कुछ स्टेप्स लगेगा, कुछ स्टेप यहां पे मैं जंप कर रहा हूं। ln ओमेगा इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा n ln n प्लस समेशन ओवर ni ln gi डिवाइडेड बाय ni। ये सब स्टेप तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे नोट्स है। ओके, तो ये रहा हमारा ln ओमेगा का वैल्यू। अब ln ओमेगा का मोस्ट प्रोबेबल स्टेट हमें चाहिए। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए हमें ये तो पता है, मोस्ट प्रोबेबल के लिए हमारा ln ओमेगा इज इक्वल टू 0 होगा, ln ओमेगा इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे ln डेल्टा ln ओमेगा इज इक्वल टू 0 होगा। उसी के साथ और एक चीज भी रहेगा, वो है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू समेशन ओवर ni, ये तो कांस्टेंट होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल तो कांस्टेंट है। ओके, और साथ ही साथ इसका टोटल नंबर ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो भी कांस्टेंट होगा, वो है ni पार्टिकल्स इनटू ei, ये रहा हमारा एनर्जी, वो भी कांस्टेंट है। तो ये सब अगर कांस्टेंट है तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि समेशन ओवर डेल्टा ni इज इक्वल टू 0 इज एंड समेशन ओवर ei डेल्टा ni इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्या किया, तुम्हें समझ में आ रहा है, वो साइड डेल्टा ले लिया तो कांस्टेंट तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ से ये मिल जाएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा। मतलब ये रहा एक इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। इन सबको मिला के हम क्या लिख सकते हैं? इन सबको मिला के हम ये लिख सकते हैं कि ln gi बाय ni इंटू माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू ei इंटू डेल्टा ni इज इक्वल टू 0। अब तुम्हारे पास ये क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि अल्फा बीटा कहां से आ गया। अल्फा बीटा को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ओके, इन सबको मिला के इसको हम अनडिटरमाइंड, इसको हम कांस्टेंट कहेंगे। इसको इसमें अल्फा मल्टीप्लाई किया, इसमें बीटा मल्टीप्लाई किया और उसके बाद इन सबको ऐड कर दिया। सबको ऐड करने से सबको यहाँ से इन लोगों को माइनस कर दिया, ऐड नहीं, यहाँ से इन लोगों को माइनस कर दिया। माइनस करने से हमें दिस इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ओके, ये एक डेफिनेट प्रोसेस है। ओके, इसको यहाँ पे अल्फा बीटा को हम अल्फा बीटा बेसिकली लाग्रांज मल्टीप्लायर है। अल्फा बीटा को लाग्रांज मल्टीप्लायर बोलेंगे। ये जो मेथड है सॉल्यूशन का, इसको हम लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड बोलते हैं। एंड ये सॉल्यूशन मैथमेटिकल फिजिक्स का एक पार्ट है। ओके, बाद में तुम लोग पढ़ना ये मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट। आज के लिए ये मान लो कि यही प्रोसेस है एंड ये ठीक है। ओके, अगर हमने दिस इज इक्वल टू 0 कह दिया, तब ये तो सिंपली है, तुम लोगों को ये तो पता ही होगा, दिस मल्टीप्लाई विद दिस इज इक्वल टू 0, एंड ये तो 0 नहीं बन सकता। ओके, यहाँ पे डेल्टा n जो है, यहाँ पे ni तो 0 नहीं बन जाएगा। ओके, यहाँ पे डेल्टा ni है, आर्बिट्ररी है। ओके, मतलब बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो 0 कौन होगा? 0 यही होगा। अगर ये 0 है, मतलब gi बाय ni इज इक्वल टू हमें ये मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा ei, ये मिल जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से सिंपली बहुत ही सिंपल तरीके से हमें ये मिल जाएगा कि ni डिवाइडेड बाय gi इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस अल्फा प्लस बीटा ei, ये मिल जाएगा। और यहाँ से हमें ये मिल जाएगा कि ni इज इक्वल टू gi डिवाइडेड बाय e टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा ei। और थोड़ा कैलकुलेशन से हम ये कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू बाई केटी होता है, एंड हमारा बीटा इज इक्वल टू 1 बाई केटी होता है। यहाँ पे के क्या है? के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, और म्यू क्या है? म्यू है केमिकल पोटेंशियल, म्यू है केमिकल
पोटेंशियल। तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया कैसे हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। ओके, तो इसको हम कहेंगे क्या, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। इसको तुम लोगों को याद रखना है। ओके, तो ये रहा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम कहेंगे क्या, अब हम लिमिटेशन ऑफ एमबी स्टैटिस्टिक्स में आ जाएंगे। लिमिटेशन ऑफ एमबी स्टैटिस्टिक्स क्या है? देखो मैंने क्या बोला था, पार्टिकल्स आर assumed to be distinguishable although in actual particle many elementary particles like electrons are indistinguishable। कैसे indistinguishable है? किसी का स्पिन हाफ है, किसी का स्पिन प्लस हाफ है, किसी का माइनस हाफ है, सो indistinguishable बन गया। तो in B statistics there is no restriction on the number of the particles that can occupy the same energy। मतलब पार्टिकल आइडेंटिकल रहेगा, डिस्टिंग्विशेबल से वो इनडिस्टिंग्विशेबल बन गया, but there is no restriction like Pauli exclusion principle, then we can consider B statistics। so ये जो limitation है वो limitation को ठीक करने के लिए हमें B statistics को लाना पड़ेगा। okay, any number of particles are assumed to occupy any number of same quantum state while many particles such as electron obey Pauli exclusion principle which does not allow the quantum state to accept more than one particle। so ये जो B statistics होगा ना, B statistics में भी Pauli exclusion principle आ जाएगा, तो उसमें Pauli exclusion principle नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो ये नहीं मानेगा, तो इलेक्ट्रॉन बोसॉन्स नहीं है। ओके, बट हम किसी और पार्टिकल अगर ले लें जिसमें जो स्पिन है वो इंटीग्रल है, इंटीग्रल मल्टीपल है, एंड वो डिस्टिंग्विशेबल भी होगा, ओके, एंड आइडेंटिकल भी होगा, जब हम बी स्टैटिस्टिक्स को मानेंगे। तो ये रहा हमारा लिमिटेशन ऑफ एमबी स्टैटिस्टिक्स। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ रहा है एमबी स्टैटिस्टिक्स का जो हमारा लिमिटेशन है। इसी के साथ हम एमबी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, जहां जिस टाइप का न्यूमेरिकल तुम लोगों के एग्जाम में आ सकता है, बहुत इजी एक न्यूमेरिकल। तो वो न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल है टू पार्टिकल्स थ्री डिफरेंट स्टेट्स। ओके, सो क्वेश्चन यही है कि टू पार्टिकल्स है, टू पार्टिकल्स इन थ्री डिफरेंट स्टेट, तो स्टेट 3 है। ओके, टू पार्टिकल्स है। एमबी स्टैटिस्टिक्स में हमें क्या चाहिए? हमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स चाहिए। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बेसिकली W है, W है हमारा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। ओके, तो W का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारा n फैक्टोरियल gi होल टू द पावर ni डिवाइडेड बाय ni फैक्टोरियल। बहुत ही इजी एक फॉर्मूला है। तो n फैक्टोरियल, कैपिटल N क्या है? कैपिटल N हमारा है दो पार्टिकल, तो n का जो वैल्यू है वो है 2। यहाँ में gi क्या है? नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स तो 3 है, ओके, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हमारा 2 ही होगा। ओके, क्योंकि कोई भी स्टेट में दो पार्टिकल साथ में रह सकता है, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे n फैक्टोरियल जगह 2 फैक्टोरियल, gi होल टू द पावर ni मतलब 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो सिंपली 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बन गया 6। ओके, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि एमबी स्टैटिस्टिक्स के अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड इन एमबी स्टैटिस्टिक्स। ओके, एमबी स्टैटिस्टिक्स में नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे। ओके, क्लियर होगा? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारा बी स्टैटिस्टिक्स के साथ। तो बी स्टैटिस्टिक्स क्या है? बी स्टैटिस्टिक्स बेसिकली उन पार्टिकल के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि पार्टिकल आइडेंटिकल होगा, पार्टिकल इंडिस्टिंग्विशेबल होगा। ओके, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल नॉट एप्लीकेबल। Okay, so any quantum state can accommodate any number of particles. Okay, B state is applicable to the particles which have integral spin angular momentum. Okay, unit of h cut. Okay, and these particles have symmetry wave function. तो वेव फंक्शन का सिमेट्री रह जाएगा, मतलब वेव फंक्शन का सिमेट्री हम बाद में कहेंगे। वेव फंक्शन सिमेट्री बेसिकली क्या है? बेसिकली वो यही है कि x को माइनस x कर देंगे, मतलब ये साई x है एक वेव फंक्शन, ये साई ऑफ माइनस x के साथ इक्वल होगा, तो इसी को हम कहेंगे सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन। ओके, एंड मतलब अगर तुम लोगों को याद है वो इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन याद ही रहेगा, तो इवन फंक्शन जो लोग बनाएगा उसी को हम कहेंगे कि ये सिमेट्री है, अदरवाइज दे आर नॉट सिमेट्री।
सो और एग्जांपल तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोटॉन्स, फोनॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, पाई मेसॉन्स, के मेसॉन्स, हिग्स बोसॉन्स, ऑल दीज आर बोसॉन्स। ये एग्जांपल तुम लोगों को याद रखना है। ओके, एग्जांपल से क्वेश्चन आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज फॉलोइंग बी स्टैटिस्टिक्स। ओके, बी स्टैटिस्टिक्स का मतलब है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ओके, बी स्टैटिस्टिक्स का मतलब है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया कि ये बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स क्या है। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है अब हम उसको निकालेंगे। तो देखो कुछ देर पहले मैंने ये बोला था कि एक एनर्जी लेवल रहेगा EI, एक एनर्जी लेवल रहेगा, उसका डीजेनरेसी रहेगा। डीजेनरेसी का मतलब है कंपार्टमेंट ऑफ द लेवल। ओके, उसको हम कहेंगे GI। अब इसमें पार्टिकल भर दो पार्टिकल जितना है यहाँ पे, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज है, वो क्या है? वो है पार्टिकल आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब पार्टिकल को हम पहचान नहीं सकते। तो पार्टिकल तो एक पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पे रखेंगे, एक पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पे रखेंगे, एक पार्टिकल को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे। ये हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो कंपार्टमेंट है ना, कंपार्टमेंट का जो ये जो डिफरेंस है, मतलब ये जो वॉल है, वॉल बिटवीन टू कंपार्टमेंट, तो इस वॉल को यहाँ से मैं यहाँ कर दूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस पार्टिकल को यहाँ से मैं यहाँ में रख दिया, ये और इस कंपार्टमेंट का वॉल को यहाँ से यहाँ कर देना, ये दोनों सेम है। बिकॉज पार्टिकल आर इनडिस्टिंग्विशेबल, पार्टिकल को तो मैं पहचान नहीं सकता कौन कहाँ से कहाँ चला गया। मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसका जो वॉल है, वॉल बिटवीन टू कंपार्टमेंट, मतलब जो सेपरेशन है, उस सेपरेशन को मैंने मूव कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि there is ni number of particles if there is ni number of particles and there is gi number of क्या कंपार्टमेंट। तो उसका जो सेपरेशन रहेगा वो क्या रहेगा? वो gi-1 रहेगा। मतलब यही बन गया हमारा टोटल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट। ओके, ये डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे? ये डिवाइडेड बाय हम कर देंगे ni फैक्टोरियल इंटू gi-1 उसका फैक्टोरियल। तो इससे हमें मिल जाएगा wi। ओके, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये है बी स्टैटिस्टिक्स से हमें मिलेगा। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ यू नो दैट इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें इक्वल ले लेंगे और इसमें हम वो मल्टीप्लाई का जो टर्म है वो हम यूज कर देंगे। उसके बाद हम ln ओमेगा लेंगे। सो ln ओमेगा लेने के पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, वो क्या है? वो है इफ देयर इज वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, ni एंड gi बोथ आर लार्ज। ओके, ये दोनों लार्ज अगर होगा तो हम क्या कहेंगे? w इज इक्वल टू, हम ये कह सकते हैं कि ni प्लस gi फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ni फैक्टोरियल इंटू gi फैक्टोरियल, ये बन जाएगा। ओके, तो उसके बाद हम इसको ln ओमेगा ले लेंगे। ln ओमेगा लेने से तुम लोगों को तो पता ही है क्या मिलेगा, समेशन ओवर ni gi, ये सामने आ जाएगा ln ni प्लस gi माइनस ni ln ni माइनस gi ln gi। सिंपली हम लॉग का फॉर्मूला यूज कर दिए, ये आ गया। स्टर्लिंग फॉर्मूला भी हमने यूज किया है यहाँ पे। ओके, यूजिंग स्टर्लिंग। तो स्टर्लिंग तुम लोगों को तो पहले ही मैंने बोल दिया स्टर्लिंग क्या है। और यहाँ पर भी वही कंडीशन रहेगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो भी कांस्टेंट है और हमारा जो टोटल नंबर और टोटल एनर्जी है वो भी कांस्टेंट है। तो इन दोनों से हम लाग्रांज मल्टीप्लायर भी यूज करेंगे, डेल्टा ni, और यहां से आ जाएगा ni ei। ओके, तो ये हमारा 0 और इसका वैल्यू भी 0 हमें मिल जाएगा। तो इन सबको यूज कर लेंगे। यूज करने से हमें ये मिलेगा कि ln ni प्लस gi डिवाइडेड बाय ni माइनस अल्फा माइनस बीटा ei। ओके, दिस इनटू डेल्टा ni इज इक्वल टू 0। तो सेम वे जैसे कि मैंने पहले किया था, उसी से हम यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ पे हमें ni बाई gi इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय
ई टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस 1 मिलेगा। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है फॉर बी स्टैटिस्टिक्स। ओके, बी स्टैटिस्टिक्स के लिए ही है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो आई थिंक तुम लोगों को ये समझ में आया है। मैं थोड़ा सा स्टेप यहाँ पे मैंने जंप किया। ओके, जो स्टेप मैंने यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे जो स्टेप मैंने दिखाया था, मैं इसमें वो स्टेप मैंने जंप किया। उसके बाद एलएन का साइड चेंज करने के बाद है वो भी मैं बोल दिया था पहले। ओके, सो ये रहा हमारा बी स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो समझ में आ गया। तो अगर जो पहले मैंने क्वेश्चन कहा था, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ई क्वेश्चन अगर बी स्टैटिस्टिक्स का बारे में बोलेंगे तो क्या होगा? तो बन जाएगा ni प्लस जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ni फैक्टोरियल जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल। तो हम अगर यहाँ पे यूज कर देंगे, सो 2 प्लस 3 माइनस 1 उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा। तो ऊपर तो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल से हमें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 मिल जाएगा। 2 फैक्टोरियल से 2 इंटू 2 मिल जाएगा, तो 2 इंटू 2 कट जाएगा, 2 और यहाँ पे 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पर भी 6 नंबर ऑफ 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। 4 फैक्टोरियल को मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। सो 2 कैंसिल हो गया, 2 यहाँ से 2 मिलेगा, मतलब यहाँ पे 6 किया। तो 6 नंबर ऑफ स्टेट्स और 6 नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स मिलेगा बोथ साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स में भी। ओके, समझ में आ गया। ये और एक न्यूमेरिकल है। ओके, सो अब हम जो बोलेंगे वो है फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन में हम यहाँ पे डेफिनेशन मैंने पहले ही बोल दिया। फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन का पोस्टुलेट्स क्या है? आइडेंटिकल इंडिस्ट्रीब्यूसिबल तो है ही, एक ही पोस्टुलेट ज्यादा है यहाँ पे, वो है हाफ इंटीग्रल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और यहाँ इसका एग्जांपल क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, म्यूमेशॉन्स, ये सब कुछ ये इसका फर्मी-डिराक फर्मियंस का एग्जांपल है। सो व्हाट इज फर्मियंस इज बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो एंड फर्मियंस के लिए एज ऑल ऑफ दीज फॉलोज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो हमें क्या है? हमें सिर्फ GI स्टेट में ni पार्टिकल्स को कॉम्बिनेशन करना है। सो GI-CNI, इसका फॉर्मूला सिंपली तुम लोगों को तो पता ही है कि GI फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ni फैक्टोरियल इनटू GI माइनस ni फैक्टोरियल। तो इसी से हमें मिल जाएगा माइक्रोस्टेट्स, वो बन जाएगा हमारा GI फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ni फैक्टोरियल इंटू GI माइनस ni फैक्टोरियल। तो इसको अगर हम ln ओमेगा ln w ले लेंगे, ln w लेने से हमें सिंपली GI ln GI माइनस GI माइनस ni ln GI माइनस ni ये मिल जाएगा, ni ln ni। तो यहाँ पर भी हमने स्टर्लिंग फॉर्मूला यूज किया है और लॉग का सिंपल फॉर्मेट यूज किया है। इससे एक काम तो ये बन गया ये कि हमें बहुत ही इजी तरीके से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा ni बाई GI का। तो ln बाई GI हमें सेम लैग्रेंज मल्टीप्लाई यूज करेंगे और लैग्रेंज मल्टीप्लाई यूज करने के बाद एज यू नो हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी कांस्टेंट रखना है, वहां से डेल्टा ni को हमें कांस्टेंट मिल जाएगा एंड सिमिलरली हमें यह भी मिल जाएगा कि ni ei भी हमारा कांस्टेंट है, वहां पे ei डेल्टा ni ये भी 0 मिल जाएगा। इसके साथ अल्फा बीटा लैग्रेंज मल्टीप्लाई यूज करेंगे तो वहां से हमें ni बाई GI, बहुत सारा स्टेप मैंने जंप किया है यहाँ पे। ओके, तुम्हें समझ में जरूर आएगा। ओके, जरूर आ रहा है कि मैं क्यों जंप किया। ओके, सिंपली अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद माइनस करेंगे। बी स्टेटस में मैंने जो दिखाया था जो स्टेप्स, वही स्टेप्स 1 बाई 1 होगा और उससे हमें ni बाई GI का जो वैल्यू मिलेगा वो है e टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा ei प्लस 1। तो ये बन जाएगा हमारा FD स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा जो W है, वहाँ पे W का जो वैल्यू है वो वहाँ से हमें मिल रहा है। अगर हमने लास्ट क्वेश्चन जो मैंने किया था, उसी क्वेश्चन में अगर FD स्टैटिस्टिक्स हम यूज करेंगे,
एफडी स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे तब हमारा आंसर क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन में हम एफडी स्टैटिस्टिक्स यूज कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा जी आई फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन आई फैक्टोरियल डू जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल। तो जी आई फैक्टोरियल के लिए हमारा 3 फैक्टोरियल रहेगा, 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल रहेगा, तो यहाँ से हमें 3 मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्कोप फॉर एफडी स्टैटिस्टिक्स 3 मिल जाएगा, एमबी के लिए 6 और बीई के लिए भी 6। सो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया कि हमारा एफडी स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे आ रहा है, बी स्टैटिस्टिक्स का कैसे आ रहा है और एमबी स्टैटिस्टिक्स का कैसे आ रहा है। इन सब का एप्लीकेशन है, 2 एप्लीकेशन है, एक है फर्मी टेम्परेचर और सेकंड वन इज फर्मी लेवल एनर्जी। इन दोनों को हम नेक्स्ट एक वीडियो कर देंगे, उस वीडियो में हम समझेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तुम लोग स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो। ओके, ये वास्ट टॉपिक है, समझने के लिए समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा मुझे बोलना पड़ रहा है। आई थिंक तुम लोग समझ सकते हो। 1 शॉट मैंने कहा था, बट सब कुछ तो 1 शॉट में नहीं हो सकता ना, तो 2-3 वीडियो लग जाता है। और एक वीडियो आएगा वो हम कल अपलोड कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड डेफिनेटली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। एग्जाम का रूटीन तो तुम लोगों को मिल चुका है, 16 तारीख से एग्जाम है। सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर योर एग्जाम एंड बहुत अच्छे से तगड़ा तैयारी करना। एंड डेफिनेटली if you forgot to subscribe this channel and press the bell icon, then please do it and share with your friends. Thank you and yeah, telegram group join कर लेना नोट के लिए। Thank you.